بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد اور میں ہوں صدف دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز اور آغاز میں بعد سیلاب صورتحال کی۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیوں کے لیے فوج بھیجنے کا فیصلہ۔ کابینہ نے فوج بھیجنے کی منظوری دے دی۔ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں فوج بھیجی جائے گی۔ تمام صوبائی حکومتوں کے محکمہ داخلہ کو آگاہ کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے فوج تعیناتی کے لیے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری کابینہ سے لی ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں فوج بھیجی جائے گی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع میں طوفانی بارشوں کے باعث آنے والے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ کہیں چھتیں گر گئیں تو کہیں ہوٹل پانی میں بہہ گئے۔ خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع میں گزشتہ 3 روز سے جاری طوفانی بارشوں کے باعث دریائے سوات بھپر گیا۔ کالام، بحرین اور مدین میں بلند و بالا عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے دریائے سوات کی تند و تیز موجوں میں تنکوں کی طرح بہہ گئیں۔ کالام کا سب سے بڑا ہوٹل بھی چند سیکنڈ میں دریا برد ہو گیا۔ بحرین بازار میں واقع بلال مسجد تیسری بار شہید ہو گئی۔ سوات کے مختلف علاقوں میں رابطہ پل اور سڑکیں سیلابی ریلے سے بہہ گئیں۔ مٹا میں گھر کی چھت گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دیر اپر میں بھی سیلاب کے باعث 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سوات کے علاقہ خوزخیلہ میں پانی کی سطح بدستور بڑھنے لگی ہے، اس لیے دریا کے قریب علاقوں کو خالی کرایا جا رہا ہے تاکہ جانی نقصان کم سے کم ہو۔ ساتھی رپورٹر قوت خان اور حیات کلامی کے ساتھ عبید فضل، 92 نیوز، سوات۔ سوات کے بعد اب چارسدہ اور نوشہرہ سے گزرنے والے دریاؤں کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے، جبکہ ٹانک اور ڈیائی خان میں متاثرین بحالی کے منتظر ہیں۔ سوات اور دیر سے سیلابی ریلا چرسدہ اور نوشہرہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چرسدہ میں دریائے سوات کا پانی خیالی کے مقام پر پل تک پہنچ گیا ہے۔ پل کو ٹریفک کے لیے ایک جانب بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پانی کی سطح بدستور بڑھ رہی ہے، جس سے آس پاس کی آبادی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ پاک فوج کے جوان بھی چرسدہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ لوگوں نے محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ نوشہرہ میں بھی دریائے کابل سے 1,50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دریائے کابل کے قریبی علاقوں محب بنڈا اور دیگر دیہاتوں کی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کوہستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ وہاں 4 افراد کے ریلے میں پھنسنے اور ریسکیو نہ ہونے کے باعث جاں بحق ہونے کے بعد اب کئی علاقوں کے زمینی رابطے بھی دوسرے علاقوں سے کٹ گئے ہیں۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سیلاب زدگان بحالی اور امداد کے منتظر ہیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔ پاکستان میں اس وقت عدالتی نظام درست سمت میں کام کر رہا ہے۔ کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں پر مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار جسٹس ہائی کورٹ لاہور چودھری عزت جاوید گرال نے مشرقی لندن میں وکلا کی جانب سے دیے گئے ایک عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عشائیے میں وکلا کے علاوہ کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات مشرقی لندن سے سلیم صابر کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے جسٹس ہائی کورٹ لاہور چودھری اسد جاوید گرال کے اعزاز میں وکلا کی جانب سے عشائیے کا اہتمام مشرقی لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں کیا گیا، جس میں وکلا کے علاوہ مقامی کونسلرز اور کمیونٹی کی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر جسٹس چودھری اسد جاوید گرال نے کہا کہ پاکستان میں عدالتی نظام صحیح سمت میں کام کر رہا ہے۔ کچھ ایسے شعبے ہیں جن میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے عدالتی نظام میں بہت فرق ہے۔ پاکستان میں سہولیت نہ ہونے کے باوجود بھی عدلیہ درست سمت کام کر رہی ہے۔ جسٹس چودھری اسد جاوید گرال کا مزید کہنا تھا کہ کچھ شعبوں میں اب بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ کیسز زیادہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اس کے باوجود معزز جج صاحبان انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے درست فیصلے دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سول کورٹس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسرز کو زیادہ تربیت یافتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ آج جسٹس اسد جاوید گرال کے ساتھ مل کر ہم اپنی معلومات میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں اور مختلف
कानूनी पेचीदगियों में इनसे मशवरा भी ले सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस चौधरी असद जावेद घुराल और दीगर ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। अदालती निज़ाम बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये जो इम्प्रेशन है कि शायद वो निज़ाम काम नहीं कर रहा, बेहतरीन अगर कोई निज़ाम काम कर रहा है तो पाकिस्तान में यूशी कर रही है, क्योंकि उस पर ओवर बर्डन जरूर है। मुख्तलिफ महकमे जो हैं उनकी तरफ से, या आप जैसे कि मौजूदा सिनारियो है उसमें अदलिया पर जो काम का लोड ज़्यादा है, लेकिन तमाम फैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में हो रहे हैं। उस पर तनकीद अगर कोई शक करता है तो मेरा शब्द है वो सही कानून से लाइलम। एशिया में कौंसलर मौज़म अली सिंधु, चौधरी दिल पजीर, चौधरी एहसन घुराल, चौधरी सिकंदर गुराया, मियां मुमताज, मोहम्मद आरिफ कुरैशी, ख्वाजा मुमताज, बैरिस्टर दानियाल शकील, हाफिज अब्दुल गनी और दीगर ने शिरकत की। आखिर में वकला की जानिब से जस्टिस असद जावेद घुराल को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। बरतानिया में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का एक मरहला मुकम्मल। बरतानिया की मरकजी बॉडी के लिए इंतखाबात 1 सितंबर को होंगे। रीजनल बॉडी के इंतखाबात जीतने वाले अहदेदार मरकजी बॉडी के इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। 15,000 के करीब बरतानिया में पीटीआई के मेंबरान दोबारा वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पीटीआई बरतानिया के रीजनल इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से 22 और 23 अगस्त 2022 को वोटिंग हुई, जिसमें ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के रीजन के नौजवान पैनल टीम आईके विजन ने एहसास पैनल से इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत लिया। टीम आईके विजन पैनल के तौकीर अहमद सती सदर, मिर्जा इखलाक नायब सदर, मलक साकब अवान जनरल सेक्रेटरी, चौधरी फैसल अली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सैफ चौधरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और नाजिया कंवल वुमेन सेक्रेटरी मुंतखब हुई। ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में कुल रजिस्टर्ड वोट 2155 थे, जिनमें से 1884 वोट कास्ट हुए। इनमें से टीम आईके विजन पैनल ने 1099 जबकि एहसास पैनल ने 785 वोट हासिल किए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक टीम आईके विजन पैनल ने ये इलेक्शन 314 वोट से जीत लिया। सदर पीटीआई लंदन वकास सागर, जनरल सेक्रेटरी नबील कुरैशी, वुमेन सेक्रेटरी नसीर मेमन, वाइस प्रेसिडेंट जहांजेब खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिदरा हिजाजी अली ने अपनी जीत को टीम वर्क करार दिया और अपने मंशूर पर अमल करने का अज़म जाहिर किया। तकरीब में साहबजादा जहांगीर और बदर पैनल के सदारती उम्मीदवार हाफिज तौसीफ ने भी शिरकत की। साहबजादा जहांगीर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को शफाफ करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि नौजवानों पर मुश्तमिल नौ मुंतखब टीम भरपूर काम करेगी। नौ मुंतखब अहदेदारों और कारकुन ने अपनी जीत पर भंगड़े डालकर और मिठाइयाँ तकसीम करके खूब जश्न मनाया। साउथ ईस्ट लंदन से मोहम्मद जाहिर राजा पहले ही बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो चुके हैं। लंदन रीजन में ड्रीम टीम ने खान टीम को शिकस्त दे दी। ड्रीम टीम 1414 वोट जबकि टीम खान ने 1259 वोट हासिल किए। इसी तरह ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में विजन ग्रुप ने एहसास ग्रुप को शिकस्त दे दी, जहां तफसीलात के मुताबिक वोटिंग का तनासुब 99.0% रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के इंटर पार्टी इलेक्शन ने साबित कर दिया कि बरतानिया में पीटीआई नौजवानों की जमात है। पीटीआई बरतानिया में दोनों बड़े नाम मियां वहीदुर रहमान और आमिर खान अपने अपने रीजन में इलेक्शन हार गए। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट रीजन के इंतखाबात का मरहला भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें टाइगर ग्रुप ने 33 वोट हासिल किए जबकि इसके मुकाबले में जुनून ग्रुप ने 738 वोट लेकर जबरदस्त कामयाबी अपने नाम की। बरतानिया की मरकजी बॉडी के लिए इंतखाबात 1 सितंबर को होंगे। रीजनल बॉडी की इंतखाबात जीतने वाले अहदेदार मरकजी बॉडी के इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। पीटीआई बरतानिया के रीजनल इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई वेस्ट मिडलैंड्स के वेटरन पैनल ने मैदान मार लिया, जिसके नतीजे में पहली बार खातून उम्मीदवार मिडलैंड्स की सदर मुंतखब हो गई। कामयाबी के बाद वेटरन पैनल के नए मुंतखब अहदेदारान ने अपने सपोर्टर्स के साथ जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। मज़ीद तफसीलात आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह वेस्ट मिडलैंड में भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसमें वेटरन पैनल और गुलामी नामंजूर पैनल का आमना सामना हुआ। कांटे के मुकाबले के बाद वेटरन पैनल ने 17 वोटों की बढ़तरी से वेस्ट मिडलैंड की सदारत का सेहरा अपने नाम कर लिया, जिसकी खुशी में कारकुनों ने खूब जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की गयी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के विजन और फलसफे को बरतानिया भर में उजागर करने का अज़म किया गया। मुंतखब अहदेदारों में वेस्ट मिडलैंड की पहली बार मुंतखब होने वाली खातून रिफत मुगल, सीनियर नायब सदर अब्दुल्ला मुश्ताक, सेक्रेटरी जनरल नासिर खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इकबाल गुजर जबकि एडिशनल सेक्रेटरी खालिदा कुरैशी शामिल हैं। इस मौके पर 9 मुंतखब अहदेदारों का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की और
खुशहाली के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन को आगे लेकर चलेंगे और पार्टी को बरतानिया भर में मजबूत और मुतहर्रिक किया जाएगा और खवातीन को ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी देकर हकीकी मायनों में माशरे को गुलामाना सोच से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। नौ मुंतखब ओहदेदारों ने इमरान खान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल पुरजोश बना दिया। इस मौके पर नए मुंतखब ओहदेदारों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी के अंदर जमहूरियत का हुस्न है। तमाम पार्टियों को अपने पार्टी के अंदर इस तरह इलेक्शन करवा कर ओहदेदारान को मुंतखब करना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलें और बरतानिया के अंदर अपने मुल्क का मस्बत चेहरा उजागर करें। PTI ने साबित कर दिया है कि खवातीन को भी उतना ही चांस दिया जाता है जितना मर्द देते हैं। और दूसरी बात, मैं एज ए रोल मॉडल सारी खवातीन से कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी में आएँ और हमारी पार्टी के जो मर्द हजरात हैं वो इतनी रिस्पेक्ट से और इतनी इज्जत देते हैं खवातीन को। और PTI में इमरान खान ने एक ट्रेंड सेट किया है कि औरतों से आदमियों से ज़्यादा खवातीन और बच्चे उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम ये हमारी टीम की विन नहीं है, ये इमरान खान जीता है यहाँ पे वेस्ट मिडलैंड में, और जो उसका विजन था उसे लेके हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने देखे हैं कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, और इंशाल्लाह जो दूसरी टीम के साथी हैं उन्हें भी हम इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। It's very important for us women to see her as a role model, and इनके साथ हम सब मिल के काम करेंगे। हम चाहते हैं कि more ladies पार्टी में आएँ, we want to support them, bring them on board. As we've said, पाकिस्तान में ladies इमरान खान को बहुत support करते हैं, visually out on the street, और इस तरह हम भी चाहते हैं कि हमारी ladies भी आएँ और इमरान खान की विजन को support। खुशी है कि लास्ट 4-5 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ रहे हैं और वेस्ट मिडलैंड के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सालों में भी, और ये जो हमें टेन्योर मिला है इसमें वेस्ट मिडलैंड के लिए भी काम करेंगे और नेशनल लेवल पे भी इंशाल्लाह PTI को प्रमोट करेंगे। वैसे तमाम सपोर्टर्स और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। इधर हमारे बड़े अच्छे सपोर्टर्स शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि हमेशा से जब हमने इनको वोट दिया तो उन्होंने कम्युनिटी में हमें हर तरह से सपोर्ट भी किया है, PTI का नाम रोशन किया है, तो आगे भी इंशाल्लाह हमें इनसे यही उम्मीद है। और यही वजह थी कि हम खुश भी थे और इनको वोट भी दिया, उनको सपोर्ट भी किया, और हमेशा इनके साथ सपोर्ट करेंगे। पूरे UK में जो पार्टी में हिस्सा लिया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनके इमरान खान के विजन के हिसाब से वो ये फंडिंग भी हमें ज़रूरी है। मैं इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे चल के UK की टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। PTI veterans and also to everyone else who took part in the voting, and good luck for the future. शोरका का मजीद कहना था कि बरतानिया में रीजनल पार्टी इलेक्शन में पहली बार खातून सदर मुंतखब हुई है, जो कि खुश आइंद बात है। उम्मीद है कि ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन सियासत में भी फ्रंट लाइन पर आकर अपना किरदार अदा करेंगी। आबद काज़मी, 92 न्यूज, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर हैमिल्टन में स्कॉटलैंड की समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी इशफाक अहमद ने साहिवाल से आए मेंबर नेशनल असम्बली पीर सैयद इमरान शाह के एजाज़ में कम्युनिटी ने इशाया दिया है, जिसमें कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की है। इस मौका पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी गुफ्तगू का हिस्सा रही। मज़ीद तफसीलात 92 न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर हैमिल्टन में स्कॉटलैंड की समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी इशफाक अहमद ने साहिवाल से आए हुए मेंबर नेशनल असम्बली पीर सैयद इमरान शाह के एजाज में मुकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ एशाइये का एहतमाम किया। इस मौके पर स्कॉटलैंड की सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ मारूफ शायरा राहत जाहिद और मारूफ समाजी शख्सियत रेहान महमूद ने भी शिरकत की। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के साथ साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी मौजूए बहस बनी रही। कम्युनिटी शख्सियात ने MNA इमरान शाह को ओवरसीज के मसाइल से आगाह किया, जिस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से पाकिस्तान जाकर भरपूर आवाज उठाने की यकीन दहानी कराई। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान पीर सैयद इमरान शाह का कहना था कि शानदार ज़ियाफत पर वो कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात करके हमेशा अच्छा लगा। इशफाक साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं, साथी हैं, महल्लेदार हैं साहिवाल से। तो आज मेरी ग्लासगो में इन्होंने बड़ी ये हैमिल्टन अपने रेस्टोरेंट स्पाइस में
इन्होंने बड़ी पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया है, तो मैं इनकी फैमिली का मैं मशकूर हूँ कि जी कि आज मुझे अपने कई प्यार वालों से मिलने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, इधर रिलेटिव्स की तरफ हम ठहरे हुए हैं, इट वाज वेरी गुड। आज ग्लेनको गए, वहाँ फोर्ट विलियम्स पर भी गए और चेयर लिफ्ट की, बहुत मज़ा आया, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। दीगर शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीर सैयद इमरान शाह ने हमेशा हक सच का साथ दिया। उन्होंने यकीनन अवाम की आवाज मियां नवाज शरीफ तक पहुंचाई है। उम्मीद है आने वाला वक्त बेहतर होगा। शाह साहब वो सियासतदान है जो सच के ऊपर लड़ते हैं, और शाह साहब ने हमेशा बड़े अच्छे फैसले किए, साहिवाल के लिए बड़े अच्छे काम किए। अब ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी दुनिया इनको मिलना चाह रही थी, नून लीग के हवाले से बड़े सपोर्टर इनके मिलना चाह रहे थे। ये तो टाइम ही नहीं था इनके पास, कि टाइम नहीं दे सके शाह साहब। और बाकी इंशाल्लाह ताला शाह साहब नवाज शरीफ साहब को मिल के आए हैं और बेहतर से बेहतर ही फैसले जो हैं वो इंशाल्लाह आइंदा हो। इनकी कंपनी को भी इंजॉय किया है माशाल्लाह से, और इसके साथ साथ जो खाना है उसे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी तकरीब रही है, और हमने कुछ जो इनके साथ बातें की हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे भी डिस्कस किया है। तो बस हमारी दुआएं हैं इन सब के लिए कि अल्लाह ताला अच्छा करे जो भी है वतन के लिए। मेंबर नेशनल असेंबली का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने चौधरी इशफाक अहमद का इस पुरतकल्लफ इशाया देने पर शुक्रिया अदा किया। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। बूढ़े वालिदैन को कैसे बरतानिया बुलाया जाए? क्या बरतानिया में विजिट वीज़े पर आए वालिदैन का वीज़ा मुस्तकिल वीज़े में तब्दील हो सकता है? स्टूडेंट्स के पास अपना वीज़ा तब्दील करने की क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान ने मारूफ माहिर कानून अमजद तारड़ से खुसूसी बातचीत की है। ये गुफ्तगू आपको भी सुनाते हैं। पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से वो लोग जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, पर्टिकुलर जो ब्रिटिश सिटीजन हैं, उनके लिए एक रूट है कि अडल्ट डिपेंडेंट का। पहले 2012 के जुलाई से पहले ये कानून हुआ करता था कि आप अपने पेरेंट्स को जो 65 प्लस हो जाते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते थे, और डायरेक्टली पाकिस्तान से भी उनको वीज़ा मिल जाता था, ये इंडेफिनेट लीव टू एंटर। और यहाँ पर अगर वो विजिट पे आते थे तो वो उस वक्त वो भी मिल जाता था, और 5 साल के बाद उनकी फिर फाइनल वो नेशनलिटी वगैरह भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जब ये रूल चेंज हो गया 2012 के जुलाई के बाद, उस वक्त होम ऑफिस ने ये नया रूल ये बनाया कि अडल्ट डिपेंडेंट की कैटेगरी बना दी, जिसमें बेशक कोई 30 ईयर का है, 50 साल का है, भाई है, बहन है, ये वालिदैन है, वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि अब आपको ये सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा कि वो जो आपका डिपेंडेंट है वो आपके बगैर वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता, यानी उसका आप वहाँ पे होंगे तो आप उसकी फिजिकली। अच्छा, यहाँ से सवाल उठता है कि अगर कोई यहाँ पर हैं बच्चे, अगर उनके 1-2 बच्चे पेरेंट्स के पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उस सूरत के अंदर भी यहाँ से वीज़ा अप्लाई हो सकता है यहाँ बुलाने के लिए? जिनके बच्चे अगर पाकिस्तान में हैं और यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चे पाकिस्तान में भी हैं, यूके में भी हैं, तो उनके लिए ये मेन चीज ये है कि रूट जो है वो, जैसे मैंने कहा कि अडल्ट डिपेंडेंट का, आप बेशक एक बेटा यहाँ पे या बेटी है और बाकी बेटे वहाँ पे है, मेन होम ऑफिस का वो देखते हैं कि क्या वो बंदा जो बुजुर्ग है वो इस बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अब फर्क होता है कि कुछ पेरेंट्स यहाँ से पैसे भेजते हैं तो वो भी इसका प्रूफ होता है, प्रूफ है। बल्कि एक नेचुरल सी बात है कि पेरेंट्स का 5 या 4 बच्चे हैं तो वो किसी एक के साथ ज्यादा क्लोज होते हैं। कुछ 1-2 बच्चे जो ज्यादा उनके क्लोज हैं, जो उनकी लुक आफ्टर ज्यादा कर रहे हैं, जो उनके मुआशी तौर पे भी हो गया, और बाकी वो मॉरली और जो होता है ना सोशली, और फिर ये एक लव एंड अफेक्शन का भी होता है कि बाज़ का आपका बेशक एक बेटा बहुत ही आला लेवल का बंदा है लेकिन नहीं मिला। अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद भी काफी मराहिल होते हैं नेशनलिटी लेने के लिए, तो अगर ओवर 65 है तो क्या उन्हें किसी किस्म का टेस्ट नहीं देना पड़ता? नहीं, जब ओवर 65 कोई भी बंदा हो जाता है उसके लिए इंग्लिश का जो B1 वगैरह है वो भी माफ हो जाता है, और लाइफ इन द यूके टेस्ट भी माफ है, वो उनके लिए जरूरी नहीं है। 65 प्लस जो है वो अच्छा, अगर पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करते हैं और अगर एक विजिट वीजे पे यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं तो क्या वो भी वो वाला वीजा अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडेंट? नहीं, विजिट वीजे वाला कोई भी बंदा जो यूके में है वो अप्लाई नहीं कर सकता। मास वाइज के कोई ऐसी उनकी लाइफ थ्रेटनिंग उनको इलनेस होगी और मेडिकल कंडीशन होगी तो वो फिर ह्यूमन राइट्स में चला जाता है कि उनकी जो सिचुएशन है कि वो ट्रैवल के काबिल नहीं है, ट्रैवल करेंगे तो उनकी डेथ का उनका खदशा है। इसलिए अदरवाइज जो मेन जो रूट है वो यही है कि आप अपने मुल्क से वहाँ से अप्लाई करके हैं।
अच्छा, दूसरा ये कि इसकी सुना फीस भी काफी ज्यादा है अगर पाकिस्तान से आप ये वाला वीजा अप्लाई करते हैं पेरेंट्स का। जी, जो अडल्ट डिपेंडेंट वाली फीस है ये 2000 से ज्यादा ही है, कोई 2300 या 400 रुपीस है नहीं, पाउंड्स में है बरतानिया का पाउंड्स है, और ये चेंज होती रहती है। ज़ाहिर है हम जो हर साल अप्रैल या जुलाई में या इसके अक्टूबर अलावा में। फिर आपकी फीस ज़ाहिर वकील भी रहती होंगे। वकील मुख्तलिफ हैं जी, जो हर फर्म का अपना अपना क्राइटेरिया, जो अपनी अपनी फीस चार्ज करते हैं, ज़ाहिर है जितना उन्होंने काम करना होता है उसके हिसाब से फिर। अच्छा, दूसरी बात है कि अब देखिए आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूके के अंदर आ रहे हैं, साउथ एशिया से, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो यहाँ पर 1 या 2 साल के वीज़े पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर वो परमानेंट सेटल हो सकते हैं? स्टूडेंट्स के लिए पहले हुआ करता था, जैसे पहले रूल चेंज होने से पहले 2 साल का वो वर्क परमिट यानी पोस्ट स्टडी वर्क हुआ करता था, जो डिग्री करता था या मास्टर डिग्री यहाँ से कर लेता था। अब इन बिटवीन वो खत्म हो गया। अब दोबारा वो हो गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए उन्होंने कहा कि जो बंदा यहाँ पे डिग्री कर लेगा या मास्टर डिग्री कर लेता है उसके लिए 2 साल का अब जो है उनको फर्दर वीज़ा देते हैं, ताकि वो उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस वगैरह भी हो जाता है और वो काम भी कर सकते हैं, उनको वो मिल जाता है। उनको ये साबित करना पड़ता है कि ये डिग्री जो उन्होंने यहाँ से ले लिया। अब स्टूडेंट के ऊपर आगे डिपेंड करता है कि अगर वो शाइनिंग है, एंटरप्रेन्योर, उनके पास कोई खास स्किल्स हैं, तो 2 साल के बाद फर्दर वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या अपना इनोवेशन वीज़ा, कोई यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। वो शादी करते हैं तो उससे भी चेंज कर सकते हैं। शादी वाला तो एक रूट है ही, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो विजिट वीज़े के ऊपर नहीं होते, वो प्रॉपर जो 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा है, 6 महीने से कम का वीज़ा वाला नहीं कर सकता, 6 महीने से ज़्यादा का जिसके पास वीज़ा होगा वो शादी कर सकता है। वो शादी वाला होगा तो फिर ज़ाहिर है वो फैमिली रूट पे चला जाएगा और उस लिहाज से उसको आगे वीज़ा मिलता जाता है।